کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمیں. سر سب سے پہلے تو حکمت کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ نارمل علاج سے جو ہم دیکھتے ہیں اس سے حکمت کتنی مختلف ہے؟ نارمل علاج یعنی 2-3 قسم جی کے طریقہ علاج ہیں. ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے, ہومیوپیتھک ہے جی, اور قدیم طریقہ علاج جسے کہا جائے طب نبوی, ہربل سائنسز, حکمت, طب یونانی, یہ نام دیے جاتے ہیں نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ کو. اور یہی طریقہ علاج جو ہے وہ صدیوں سے قائم ہے. اور اس کی افادیت یہ ہے کہ دنیا ہم دیکھیں, ماضی میں جان کے دیکھیں تو وہ صحت مند لوگ تھے, صحت مند غذائیں تھیں, صحت مند سوچ تھی, اور اقدام عمل بڑا مضبوط اور مکمل ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ, اور ان کی عمریں طویل ہوتی تھیں. اب کا موجودہ حالات دیکھے جائیں تو بیماریوں کی جڑ ہے ہماری خوراک, ہمارا معاشرے میں جو ہمیں مل رہی ہے نان ہائیجینک سسٹم جو مل رہا ہے, بالکل ایسا ہی, تو وہ جو ہے وہ صحت کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں, شخصیت کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں. اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے خلاف یہ سارا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے, جس میں ایمرجنسی میں تو میں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں خود ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں, میں نے امریکہ سے ایم ڈی کیا تھا اور این ایم ڈی کیا نیوکلیئر میڈیسن میں, اسی طریقے سے ایم ڈی ایچ ہومیوپیتھک میں کیا. تو ہربل سائنسز میں نے پی ایچ ڈی امریکہ سے کیا تھا, کیلیفورنیا یونیورسٹی سے. پھر 19 سال پیسیفک یونیورسٹی, کیلیفورنیا یونیورسٹی, اسٹاکٹن یونیورسٹی میں, اور اس طرح 7 یونیورسٹیز میں نے پڑھایا بھی ہے, جس میں ہربل سائنسز تھی, اس میں نیچروپیتھی, نیوٹریشنل میڈیسنز, ہولسٹک میڈیسنز, نیوکلیئر میڈیسنز, اور پھر مذاہب عالم پہ میں نے پی ایچ ڈی جو کیا تھا اس پہ میں نے ریلیجس سائنسز میں بھی وہاں بہت سارے لوگوں کو لیکچرز دیے ہیں. اب لازمات ہے کہ 19 سال میں ہزاروں میرے شاگرد دنیا بھر میں ہیں, موجود ہیں, جو مستفید بھی ہو رہے ہیں. اور یہ ایک سسٹم جو ہے اس کو زندہ رکھنا ضروری ہے, ضروری نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے, نیچر کو خدا نے قائم کیا ہوا ہے. اچھا, میں گزارش یہ کروں گا کیونکہ یہ ہمارا پہلا اس سلسلے کا پروگرام ہے, آپ کی ماشاءاللہ بڑی کنٹریبیوشن آپ کی فیملی کی بھی جو ہے وہ ٹورڈز حکمت رہی ہیں, اور ایک بڑا طویل عرصے سے سلسلہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا ہے. ہمارے علم میں تو ہے, یقیناً سننے والوں کے لیے میں چاہوں گا ذرا گوش گزار کر دیں کہ یہ سلسلہ, اس کا آغاز کہاں سے ہوا, یہ بلڈ لائن میں کیسے یہ حکمت آئی ہے, اور یہ سلسلے کا آغاز کہاں سے ہوا. چاہوں گا تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات ہو جائے. جی جی, بہت اہم سوال ہے آپ کا. میری 11 جنریشن ہے, 11ویں نسل ہے جو حکمت کے میدان میں ہے. میں سب کو تو نہیں لا سکتا, لیکن میں اپنے پردادا سے شروع کرتا ہوں کہ میرے پردادا, ان کا ٹائٹل تھا, یعنی خطاب تھا جو ہندوستان میں تھا ملا ان کو تھا مسیح الہند, حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی. آپ حکیم اجمل خان کے استاد تھے, اور سلطنت عثمانیہ کے شاہی معالج تھے اس وقت میں, اور ملکہ وکٹوریہ کا آپ نے علاج کیا تھا لندن بکنگم پیلس میں. ان کے والد جارج ہچتم کا علاج کیا تھا. آج بھی بکنگم پیلس میں میرے پردادا حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی, ان کا بایوگرافی, بہت بڑی ایک پکچر ہے جس میں ان کے بایوگرافی, ٹائٹلز اور ایوارڈ وغیرہ جو ہیں ان کو ملے ہیں. اس زمانے میں ہندوستان کے حکیم جو تھے بہت مشہور تھے دنیا بھر میں, اور خاص طور پہ دہلی کے حکیم وہ خاص طور پہ مشہور تھے, بالکل سرٹیفائڈ اور کوالیفائڈ سمجھا جاتا تھا. تو اس طرح جو ہے میرے دادا حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی, ان کا ٹائٹل تھا حاذق الہند, یعنی اسکالر آف انڈیا. اور آپ 7 ریاستوں کے معالج تھے, جس میں حیدرآباد, دکن, مالیر کوٹلا, رامپور اسٹیٹ, لوہارو اسٹیٹ, خیرپور, میرٹھ, سندھ کی, اور اسی طرح سہارنپور اسٹیٹ کے 7 ریاستوں کے وہ رائل فزیشن تھے. میرے والد حکیم سید ظفر عسکری, ان کا ٹائٹل تھا طبیب الاثر کا, اور آپ شہنشاہ ایران کے معالج تھے, شاہ اردن کے, اور اسی طرح ظاہر شاہ افغانستان کے جو رولر ہوا کرتے تھے ان کے معالج رہے ہیں. میں خود بھی حکیم سید علی نصر عسکری کے نام سے پہچانا جاتا ہوں, اور میں جوناگڑھ اسٹیٹ کا معالج ہوں, اور امائے دین سلطنت کا
मैं रॉयल फिजिशियन हूँ। वो तो सर आपकी अटायर से हमें ये समझ आ रहा है और आपकी हिकमत के हवाले से हमने सुना है। सबसे पहले तो ये बताएं लोगों को, देखने वालों को, कि अपना जो ख्याल है ना वो हम सबसे पहले तो अपने आप से रख सकते हैं, खुद ही रख सकते हैं। जो खुराक हम खाते हैं, जो ग़िज़ा हमारी होती है, जो लाइफस्टाइल हमारा होता है, सबसे पहले आई थिंक जो सेहतयाबी है वो वहाँ से शुरू होती है। जी। आप क्या टिप्स देना चाहेंगे देखने वालों के लिए कि वो सबसे पहले क्या करें, अपना ख्याल किस तरह रखें? देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि जिस्म अल्लाह की अमानत है, बहुत और अच्छी बात इसका ख्याल रखना, हिसाब रखना, एक तो खुद हमें अब एहसास होना चाहिए कि इस अमानत को हम किस तरह संभाल कर रख सकते हैं। ठीक है, जिस कदर हम इसके साथ अच्छा सलूक करेंगे और अपने रिलीजन के मुताबिक अपनी ग़िज़ाएँ जो कुदरत ने अता फरमाई हैं, जिसमें फल, फ्रूट, सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और मुख्तलिफ गोश्त और दूध, दही, मक्खन, इसका मुतवाज़न इस्तेमाल करें तो हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। ना सिर्फ बच सकते हैं, ज़िंदगी को तवील करने के साथ साथ हसीन, खूबसूरत और जवान रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अपनी तवील उम्री के राज मालूम करो, तस्खीर कायनात के रास्ते मालूम करो, और इस जो जिस्म तुम्हें दिया है इसका हिसाब व किताब होगा, इसको अमानत को समझो और इसका ख्याल उस तरह रखो कि जैसे जब आप खाना खा रहे हों तो ऐसा लगे, आपको महसूस हो कि आप इबादत कर रहे हैं, और इस जिस्म में जो ग़िज़ाएँ डाल रहे हैं वो अल्लाह की नेमतों और रहमतों से, बरकतों से भरपूर है। बिल्कुल ऐसा ये एहसास जो होता है ना, ये असल में बुनियादी चीज़ होती है। ये आपकी एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट करती हैं, आपको रिलीजियस मामले में आपको बूस्ट करती हैं, और ज़िंदगी में जीने के रास्ते आपको बताएं। बहुत खूब। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये फरमाइएगा, आप फी ज़माना जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं की तो निशानदेही जैसे मिस समारा ने अभी की है, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि ये हमारा जो लाइफ स्टाइल है सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है प्रॉब्लम बन रहा है। दूसरा ये कि अब जो शिकायत आ रही हैं, पहले शायद किसी ज़माने में, आप तो कई अरसों से, कई दहाइयों से ये काम कर रहे हैं, निज़ाम के हवाले से हमारे पास सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल हैं जिसका चीदा तस्करा कर देता हूँ। तो कॉन्स्टिपेशन का है, या फिर उसका स्टेबल ना होना स्टमक का, फिर एसिडिटी, इंडाइजेशन, और ना जाने इस किस्म के कितने मसाइल हैं जो पहले बहुत थोड़ी जो है ना इसके केसेस रिपोर्ट होते थे, लेकिन अब शायद ये कहने पर हम मजबूर हैं कि कुछ लोग हैं जो इससे बचे हुए हों, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह आपकी क्या समझ में आती है, आपकी तहकीक इस हवाले से क्या? देखिए, बुनियादी वजूहात तो हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है, जिसमें हम अब ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बेदरेक कर रहे हैं, जिसमें प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, समझिए ना, तली हुई अशिया बहुत ज़्यादा हैं, चिप्स और समोसे, पकौड़े, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम कभी कभी इस्तेमाल किया करते थे। जी। लेकिन अब ये रूटीन के साथ रेगुलर इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि बच्चों में एक तो हाइट ग्रोइंग का मसला पैदा हो गया, बच्चों को जल्द ऐनक लग गई, इसी तरह बच्चे जो है बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो गए, बिल्कुल ऐसा ही, बचपन से एकदम बुढ़ापे की तरफ आ गए, जवानी का गैप ख़त्म हो गया। यानी जिसको कहा जाता है ना कि इसको ये जवान हो गया है, बल्कि वो अब बहुत कम लोगों में महसूस होता है कि जब बचपन से एकदम बुढ़ापे की तरफ आ जाना और दरमियान से जवानी गायब हो जाना, एकदम अस्पतालों में जाना, और वहाँ पर जो है वो अस्पताल लाजमी बात है कि ये हॉस्पिटल, ये दवा खाने, ये शफा खाने इंसान की सेहत और बका के लिए बने हुए हैं, मगर वक्त कबल अज़ वक्त आपको बुढ़ापा तारी होना, ये जंक फूड वगैरह नॉन जो है हेल्दी जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल है। अब हमें आना चाहिए लाइफस्टाइल की तरफ, हमें फल, फ्रूट, सब्जियां, दूध, दही, मक्खन वगैरह को बाकायदा इस्तेमाल करें। रात खाना खाते ही सो जाने वाले हार्ट के मरीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाते हैं, शुगर के मरीज़ हो जाते हैं, या वो लोग जो खाना खा के बैठे रहते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, और उनका देखिए जब पेट खराब होता है ना तो सोच भी खराब हो जाती है, यकीन है, बहुत अच्छी आपके अंदर टेंशन पैदा हो जाती है, कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाता है, खौफ आना शुरू हो जाता है, और रोना धोना शुरू हो जाता है, वहाँ पर ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको ग़िज़ाओं का तायुन करना है, और जो हम बताते हैं ना कि ये चीज़ें खाएं, अगर उनको रेगुलर आप इस्तेमाल करें, जिस तरह माजी में हमारे बुजुर्ग किया करते थे, तो उनका स्टाइल आज भी हम समझते हैं कि वो हेल्दी स्टाइल था, और वो अपनी ज़िंदगी को
बेहतर तरीके से गुजारते थे। बिल्कुल। और हकीम साहब, एक वक्त था जब हम देखते हैं अपनी नानी दादियों की पिक्चर्स, अपनी वालदा की पिक्चर्स पुराने ज़माने में, तो लंबे घने बाल हुआ करते थे, और अब वो जो है ना वो चीज़ हमारे जनरेशन में हाँ, मेरा ख्याल है वो मिसिंग हो गई है। और सफ़ेद बाल जो आ जाते हैं बहुत कम उम्र में, जिस तरह आपने बात किया कि एजिंग बहुत जल्दी हो रही है, तो ये सफ़ेद बाल आना और फिर बालों का गिरना, ये किस हद तक हम ठीक कर सकते हैं, इसके देखिए, बारे में जहाँ कुछ तक नानी दादी का स्टाइल था वो मेरा ख्याल है आपको भी मिल गया। आपके भी घने बाल हैं, लंबे बाल हैं, और आपने उन स्टाइल को माजी के जो हमारे बुजुर्गों का था, असलाफ का स्टाइल था, वो लेकिन अपने अभी खाने भी पीने का सबको, रखा है। हाँ, अब बात ये होती है कि हमें अपना ज़िंदगी को उस तरह गुजारें जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है, कि हम अगर 5 वक्त नमाज 5 वक्त औकात में बहुत अच्छी अपने इनका तायुन कर लें, तो यकीन मानिए कि हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा जो है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। ये दुनिया में हम पहली और आखिरी दफ़ा आते हैं, मगर ये इसको पहली और आखिरी दफ़ा समझते हुए आप ये समझें कि आपने ज़िंदगी को हसीन, खूबसूरत और बामकसद ज़िंदगी गुजारनी है। आपको दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी एक मकसद के लिए भेजा है, उस मकसद को तलाश करें, ना कि सुबह और शाम आप ये सोचते रहें कि दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, समझिए सुबह क्या खाना है, और मुसलसल खाते रहना। आप ज़िंदगी को कम करते चले जाएंगे, आपका वक्त गुजरता चला जाएगा, कम होता चला जाता है। आपको इस ज़िंदगी को हसीन बनाने के लिए उन चीज़ों पर अमल करें। मिसाल के तौर पर सुबह उठते ही पानी का गिलास, 2 से 3 गिलास पानी पिए, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये 4-4, 5-5 दाने अगर आप खा लेते हैं, कोई इतना कॉस्टली नहीं है, उन पिज़्ज़ा और बर्गर और उन फजूलियात से ज़्यादा सस्ती और बेहतरीन ज़िंदगी आपको मिलना शुरू हो जाती है। मैं इस वक्त अपनी उम्र में बैठा हूँ, मैं अपना लाइफ स्टाइल को मैंने उसी तरह गुजारा है, जो कि, और मेरी अल्लाह की रहमत है, आई साइड नॉर्मल है, दांत नॉर्मल है, इस उम्र में अल्लाह की रहमत है, स्किन मेरी ग्लो कर रही। क्यों? देखिए, हम टेस्टोमोनिया हैं, आप टेस्टोमोनिया बैठे हुए हैं। आप जब ज़िंदगी को एक बेहतरीन स्टाइल में लेकर आते हैं, तो उसके अंजाम, उसके रिजल्ट, उसके आउटपुट, उसकी तमाम चीज़ें आपको कामयाबी की दहलीज तक पहुँचाती हैं। बहुत खूब। अच्छा, अब ज़रा मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हो जाए। ज़रा बुनियादी जो मसाइल हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं आजकल। और एक तो मैंने मसला जिसकी निशानदेही की है, दूसरी ख़वातीन के हवाले से आजकल स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, बालों के प्रॉब्लम्स हैं। ये अब सवाल ये पैदा होता है कि आजकल इस वक्त मॉडर्न एरा जिसमें हम रह रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं, और लोगों का एक ये जहन शायद बन चुका है कि ये अद्वियात से ही मामला और मसला जो है वो हल होगा। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? अगर क्या वाक़तन कुछ इस तरह की अद्वियात जो कि इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, काम कर रही हैं, तो क्या उसका इस्तेमाल सही है, और इस इस्तेमाल किया क्यों जाए? सवाल ये पैदा होता है क्योंकि हम ये तकाबली अगर जायज़ा लें तो माजी में कभी जो है वो इस तरह का कोई सूरत हाल दवाइयों की नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज लोग खुशी खुशी अद्वियात को जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यासर, आपका जवाब हम ले लेंगे। एक कॉलर है पहले, डॉक्टर साहब सियालकोट से कॉलर है, तो उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, नाम बताइए। सर, मैं कमर बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी, मुझे मेरी सिस्टर है, उनकी एज तकरीबन 40 से 45 साल के लगभग है जी। तो उनको शुगर 400 साढ़े 400 के करीब रहती है। इलाज भी करवा रहे हैं उनका, लेकिन वो मसले को भी हल नहीं निकल रहा। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे प्लीज गाइड करिए। ठीक है। जी जी। अच्छा, उम्र क्या बताई उनकी? 40 से 45 साल। 45। अच्छा, वेट कितना है? वेट सर, वेट तो नहीं अभी, ओवर। चले ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। अच्छा जी, देखिए, शुगर एक ऐसा मसला है कि जो हम समझते हैं कि इसमें खुद लापरवाही, बेहतियाती और अवेयरनेस ना होने की वजह से सर शुगर हो जाती है। चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना या ऐसी अशिया का इस्तेमाल करना जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ, तो ये शुगर की तरफ ले आती हैं और जो मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, इनको अगर मैं एक छोटा सा वो टोटका बता देता हूँ। ये टोटका है या नुस्खा छोटा सा है। अगर ये शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो आप एक पान का पत्ता लीजिए और एक नारियल का टुकड़ा लीजिए, उसको रात को भिगोइए, सुबह उसको मैश कर लीजिए अच्छी तरह और सुबह उसको पिए। इससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता शुगर जो है वो आपकी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। और ये एक वो नुस्खा है जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझसे रब्ता भी कर लीजिए। मेरे फ़ोन नंबर हमने चल रहे हैं, आप इन नंबर पे रब्ता कीजिए। ऑनलाइन मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा। जो अपना हमारा कोर्स है वो 3 से 4 महीने आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये होगा कि शुगर बॉडी से
नॉर्मल ख़त्म हो जाएगी, किसी दवा की ज़रूरत नहीं है रहेगी, और आपका जो है वो शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम भी पैदा होते हैं। शुगर के मरीज़ अक्सर ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। जी, शुगर के मरीज़ जब ये दवाएं इस्तेमाल शुरू करते हैं, जो हम समझते हैं कि साल हाँ साल एलोपैथिक दवाइयाँ बगैर डॉक्टर को दिखाए, वो कितने साल हो गए हैं जी, 10 साल से खा रहे हैं, 15 साल से खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दोनों दवाएं जो हैं, इनके आफ्टर इफेक्ट जो हैं वो आपको मोटापे की तरफ ले आएंगे, हार्ट प्रॉब्लम में जोड़ों के दर्द, और इस तरह ब्लड प्रेशर और तमाम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको मुब्तला करती रहेंगी। आप अपनी एक्सरसाइज करें, अपनी ग़िज़ा को नॉर्मल रखें, ग़िज़ा डाइजेस्ट करें, और इसके साथ साथ कंज्यूम करने के लिए आप साथ साथ वॉक वगैरह सब ये रखें। और लाइफस्टाइल में जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, इन बातों को आप नोट कीजिए, ये बातें मामूली नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी, सेहत और बका के लिए हम आपके पास यहाँ बैठे हैं, ताकि आपको पता लगे कि दुनिया में आने का एक मकसद क्या है। और शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये तमाम चीज़ें आप खुद अपनी गलतियों से पैदा करते हैं, ना कि और गलतियाँ क्या हैं जिनका मैं इजहार करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। एक और कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सना बात कर रही हूँ कराची से। जी जी सना, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगी? सर मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। अच्छा। 5 साल से। ठीक है। तो मेडिसिन के साथ साथ मैं परहेज बहुत करती हूँ, और वे जो टोटके बता रहे हैं जी वो तमाम यूज़ करती हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे इतने शदीद किस्म के चक्कर आते हैं कि मैं सजदा नहीं कर पाती, मुझे लगता है पूरा दिन गिरेगा। तो जब मैंने वो टेस्ट वगैरह करवाए, मेरे टेस्ट क्लियर है, मतलब सर्वाइकल प्रॉब्लम भी मुझे नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा भी तमाम मेरे टेस्ट क्लियर आए हैं। और मतलब ब्लड प्रेशर भी मेरा कभी हाई नहीं हुआ, नॉर्मल रहता है। आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाएं ज़रा। अच्छा, मेरा जो है वो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, मतलब ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होता मेरा कभी। इसके अलावा मेथी दाना मैं सुबह निहारमू कलौंजी के साथ लेती हूँ। उसके बाद पनीर बूटी का पानी भी पीती हूँ। कैल्शियम के लिए मैं वो फूल मखाने वगैरह भी। अच्छा, एक आपसे गुजारिश सिर्फ ये है कि ये जो सारी चीज़ें भी आपने बताई हैं, ये किसी के मशवरे पे आपने अमल करके ये शुरू की हैं? जैसे आपने मेथी दाना, कलौंजी, इन सब का तस्करा किया है, या खुद से आपको महसूस हुआ कि ये मुझे लेना चाहिए? नहीं, मैंने खुद से, क्योंकि मेरी वालदा जो है, मेरे नाना हिकमत करते थे, तो वो वालदा को हमने देखा कि इस तरह ही, मतलब वो टोटकों पे वो रहती थी, तो इसलिए मैंने भी मतलब। सना, आपकी बात हम समझ गए। अभी कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। आपने जो अपना मसला बयान किया है, इसके ऊपर ज़रा हकीम साहब से राय लेते हैं। प्रोफेसर साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं? प्रोफेसर, क्या आपकी समझ में आता है? और जो मैंने अभी दूसरी बात, इस सवाल का दूसरा हिस्सा है कि ये तो खुद से इस्तेमाल करना, क्या इसकी कोई गुंजाइश है? अमूमन ये कहा जाता है कि जैसे मेथी दाना है, इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रा इसकी चीज़ें हैं जो कि अमूमन टीवी चैनल पे बताई जाती हैं। जी जी जी। मैं भी बताता हूँ, इसी किस्म की जो है रेमेडीज़ बताई जाती हैं, जिससे जो कि अमूमन घरों में लोग इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, ये जितनी रेमेडीज़ हैं, ये मुकम्मल इलाज नहीं है, ये कंट्रोल है। किसी हद तक आपको उस मर्ज़ की शिद्दत से बचाने के लिए हम आपको तुल मकदूर कोशिश ये करते हैं कि आप अपनी उन चीज़ों को जो है वो एक तो छोड़ दें जो आपकी गलत ग़िज़ाओं और गलत रूटीन ज़िंदगी का है। एक दूसरा ये है कि ये हल्की फुल्के नुस्खे ऐसे होते हैं कि जिससे घर बैठे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बाज़ लोग जो इनिशियली स्टेज के होते हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने चंद दिन इस्तेमाल किया और हम ठीक हो गए। आपका मसला जो है, ये आपकी पूरी बॉडी जो है, ये मसाइलस्तान है। यानी जो आपने बताया, हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ गई, आपके लीवर प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, आपको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, इसके लिए बाकायदा इलाज की ज़रूरत है, ना कि रेमेडीज़ की ज़रूरत है। आप रेमेडीज़ यूज़ करें, लेकिन इलाज इसके साथ साथ और परहेज़ और अपने ज़िंदगी के अमूर और ज़िंदगी के असूल जो हैं वो मुरतब कीजिए ऐन इस्लाम के मुताबिक जी। तो ये आप इंशाल्लाह इससे कंट्रोल भी हो जाएगा। और मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन मेरा अक्सर जो मरीज़ों ने जिन्होंने शुगर की हमारी दवाएं खाई हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हुआ, उनका जैसे जैसे शुगर आपको चक्कर यूँ आ रहे हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम जो है वो
وہ بھی نظر آ رہا ہے جس سے آپ کو آپ کا برین جو ہے اس میں بلاکیج کی طرف وہ جا رہا ہے، اور جس طرح آپ کو چکر آتے ہیں اس کو آپ کنٹرول کر سکتی ہیں. آپ میرے سے رابطہ کیجئے اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ نمبر اس آپ کے کا پاس آ جائے گا اسکرین پر، تو آپ دوں گا. حکیم صاحب کو بالکل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں. حکیم صاحب اب اسکن کے حوالے سے کچھ بات کی جائے. اسپیشلی ینگ لڑکیوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایکنی کا بہت پرابلم ہے. اچھا نیوز بریک ہے، اور حکیم صاحب اس سوال کا جواب ہم بریک کے بعد لیں گے. ایک نیوز بریک کی طرف ہمیں جانا ہے. جی لاسٹلی پروفیسر صاحب وقت اب محدود ہے. آج بڑی اچھی گفتگو اب تک ہوئی ہے صحت کے حوالے سے، آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ماشاءاللہ. پاکستان میں تجربوں کی جو ہے نا ایک فیکٹری ہے، ہر جگہ تجربہ ہو رہا ہے، سیاست میں تجربہ ہو رہا ہے، کھیلوں میں تجربے ہو رہے ہیں، کوکنگ میں بھی ہم تجربے کر رہے ہیں. تو تجربوں سے ہماری زندگی جو ہے نا وہ بڑی بھرپور ہے بحیثیت پاکستانی. تو آپ کے بھی کچھ تجربات رہے ہیں، تو یہ تجربہ جو میں یہ دیکھتا ہوں اکثر جو ایسے چینلز ہیں جہاں پہ کھانے پکانے کی بہت ساری بتائی جاتی ہیں، میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ہیلدی فوڈ کی طرف ہماری بھی آپ وہاں لائیں. ہر جگہ پہ چکن اور گوشت اور یہ سبزی بنا رہے ہو، سمجھے نا. آج جس چیزوں کو ہم کہتے ہیں، آج مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے ٹینڈا اور قورمہ بنایا. تو اس طریقے سے گھیا، توری، شلجم، کدو وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ ہمیں عموماً رکھنا چاہیے غذاؤں میں. بالکل ٹھیک ہے. اور ایسی غذائیں میں ماشاءاللہ ان کا مجھے بڑا پسند آیا. اسٹائل بھی بڑا اچھا ہے اور انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ بھی بڑا ہمارے. اب ناظرین کو میں یہ کہوں گا کہ اس قسم کے غذائیں کو استعمال کیا کریں تاکہ آپ مضبوط قوم بنیں اور مضبوط زندگی گزاریں. مربوط طریقے سے آپ کا زندگی کا جو ازدواجی معاملات ہیں، آپ کے جو دوسرے معاملات ہیں، اس میں آپ بھرپور طریقے سے کردار ادا کریں. اچھا اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دو تین چیزیں میں آپ بتا دیتا ہوں تاکہ ناظرین کو ہمارے آنے کی افادیت بھی معلوم ہو. ناظرین بات یہ ہے کہ یہ مختلف مغزیات جسے ہم کہتے ہیں، بادام، پستہ، اخروٹ، چلغوزہ، پمکن سیڈ یعنی کدو کے بیج، سورج مکھی کے بیج، چیا سیڈ، السی کے بیج وغیرہ جو ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت جو ہیں میں جو آپ کو بتائی ہیں، اس کے علاوہ ہے جیسے ناریل ہے، کھجور ہے، انجیر ہے، زیتون ہے، یہ ان کو مختلف انداز میں آپ جیسے ہم بتاتے ہیں استعمال کیجئے. آپ کی جن دو بچوں کی اسکن کا پرابلم آ رہا ہے وہ کدو کے بیج استعمال کریں. بلڈ پریشر میں کدو کے بیج ہیں، اس طرح سورج مکھی کے بیج اور ایک اور کالر ہے ڈاکٹر صاحب مغز چہار وغیرہ، اس کا استعمال ریگولر رکھیں. آپ کا دل، دماغ، نظر بہت بہترین ہوتی چلی حال ہو جائے گی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، لاسٹ کال لے لیتے ہیں. جی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ کراچی سے لے کے میں بات کر رہا ہوں. یہ آواز ہمیں کم آ رہی ہے. جی کراچی سے لائک احمد بات کر رہے ہیں. جی یہ آج کل شوگر کا اور الرجک کا بہت ایشو چل رہا ہے اور اس پہ کوئی صحیح تحقیق بھی نظر نہیں آ رہی. مختلف لوگ رائے دے رہے ہیں تو کوئی اتھینٹک کوئی چیز ہو جس سے لوگ جو پریشان ہیں ان کو بھی کوئی چیز مل سکے. اچھا گزارش یہ ملک بھائی، وقت کیونکہ بالکل ختم ہو گیا، آپ کی بات جتنی میں سن پایا ہوں نا اس کے اوپر ضرور میں پروفیسر صاحب سے جواب لے لیتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. وہ شوگر کی نشاندہی کر رہے تھے کہ بڑی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ لائک بھائی گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر مختلف بیماریوں کے اوپر پورا پروگرام ہوگا. جی پروفیسر صاحب کچھ اس میں انہوں نے کہا کہ شوگر ختم ہو جاتی ہے یا نارمل رہتی ہے. عام خیال یہ جی عام خیال یہ ہے کہ شوگر نہیں ہوتی. اکثر مولجین کہتے ہیں جو خاص طور پہ ایلوپیتھک مولجین ہیں، ان کے یہ ہوتا ہے کہ جی یہ دوا اپنی ساری زندگی کھانی ہے، شوگر کا علاج نہیں ہے، لیکن دوا آپ مسلسل کھاتے رہیں تو بھائی دوا کیوں دے رہے ہیں؟ اگر شوگر کا علاج نہیں ہے تو آپ دوائیں اس کو مستقل زندگی بھر کھانے کو نہ کہیں. آپ یہ کہیں کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، یہ مت آپ دعویٰ کیجئے کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا مَرْضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ نے کہا ہے کہ تمام امراض کا علاج موجود ہے. اور یا تو آپ خدا کی ذات کو ڈینائی کر رہے ہیں، قرآن کو ڈینائی کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں میں مایوسی پیدا کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. میرے ہزاروں مریض ایسے موجود ہیں جو شوگر کے میں مبتلا تھے اور آج ان کی زندگی نارمل ہے، وہ اپنی شوگر سے نجات پا چکے ہیں اور وہ لائف ٹائم کا علاج موجود ہے. یقین واسق رکھیں اور تلاش کیجئے. ہم مزید آگے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے حکیم صاحب آپ کے ساتھ، اور بالکل ڈائبٹیز کے حوالے سے بھی ایک علیحدہ سے ہم پروگرام کریں گے اور بات کریں گے. پروگرام کا یہاں وقت ہوا ہے ختم، اور حکیم صاحب آپ کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا.
اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور کل ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. مجھے یاسر اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.